Now we move to FRM CFA. FRM is your financial risk management. मैं लिख देता हूँ, and please bear with my writing. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. CFA है आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. रुको, ठीक है. अब इनके बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, सब डिस्कस करते हैं. ठीक है. सबसे पहले, इज CFA गुड? I'll give you my opinion first and then we'll talk about some relevant facts. According to me, CFA is the best finance course in the world. Worldwide, I'm saying. वैसे तो it's a US based certification, globally recognized everywhere. आप कहीं भी जाओगे सबको पता होगा. But according to me, it's the best finance course in the world. FRM probably the second best course in finance in the world and the best for number one for risk management. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन why is that? वैसे तो मैंने करा है इसलिए बोल रहा हूँ मे बी, बट एक फैक्ट चेक करना. सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड आर वेरी हाईली रैंक्ड फॉर फाइनेंस वर्ल्ड वाइड. उसमें से एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट और नॉट. एक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. इट्स वेरी कॉमन फॉर MBA इन फाइनेंस. इट्स वेरी हाईली रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल टॉप के रैंकिंग्स में आती है वो. सो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो उनका MBA इन फाइनेंस का प्रोग्राम है ना, उस पर लिखा है बड़ा प्राउडली दैट वी कवर 75% ऑफ CFA सिलेबस. One of the best colleges in the world for MBA in finance specifically mentions that we cover 75% of CFA syllabus. यहाँ से ही it's enough to tell you the importance, the understanding, the depth and the knowledge that CFA possess. It's absolutely great. It covers everything. 10 subjects है. I am not able to recall all the 10. Eco, portfolio management, fixed income, derivatives, corporate finance, ethics, your financial reporting analysis, portfolio management, alternate investments, everything is covered in that. The same 10 subjects are there for all the 3 levels, but वो difficulty बढ़ती रहती है. So this will be enough to tell you why it is so important. So CFAs although for everyone जो भी finance में जाना चाहते हैं, but specifically if you want to get into equity research या फिर investment banking या financial analysis या any other similar corporate finance profile, CFA is for you. FRM किन के लिए? जो भी किसी भी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क बजटिंग, मार्केट क्रेडिट, ऑपरेशनल, किसी भी रिस्क के एसोसिएटेड प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए. जिनको कंपनी में चीफ रिस्क मैनेजर बनना है, चीफ रिस्क ऑफिसर या फिर रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, कि कुछ भी करना है रिगार्डिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इट्स फॉर देम. दोनों कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो आई हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस, आई हैव टोल्ड यू किसको क्या करना चाहिए. नाउ द मेन पार्ट, टाइम कितना लगता है. सो FRM हैज 2 लेवल्स. जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए दोनों लेवल्स के बीच में, वो तो होता ही है एनीवे. अगर आप दोनों एक बार में करते हो, इट टेक्स अराउंड 1 year, बट 1 to 1.5 years इज द स्टैंडर्ड टाइम. I took 1.5 years. I took 1 year for the second level. So sometimes people take 1 year for second level. कई बार वो एक ही साल में दे देता है, कई बार वो 2 साल भी लेते हैं. So it depends from individual to individual. 1 to 1.5 या 2 years is what it takes for FRM. CFA has 3 levels. तो वहाँ पे टाइम थोड़ा बढ़ जाता है. So I would say 2 to 2.5 years में हो जाता है सबका CFA if you do it in a continuation. CFA takes around 2 to 2.5 years. Now coming to the cost investment. CFA में कितने लगते हैं, FRM में कितने लगते हैं. So FRM के दोनों levels, both levels FRM के, along with your books, your calculator, BA2 plus या BA2 plus professional, and if you are, I'm assuming if you take any classes or coaching for that, I think 1.7 to 1.9 lakhs is the total investment. I think exam fee for the first exam now is around 75,000. Second में आपकी registration fee हट जाती है, so it's coming around 50-55,000. ये दोनों मिला दो, फिर books 1-2,000 दोनों लेवल्स के लिए. कैलकुलेट कम्स अराउंड 4 to 5,000. कोचिंग लेट्स से roughly 15 to 20,000, 15 to 20,000 each level. So that is the cost for FRM. Coming to CFA, CFA की cost is a little more. Now they have also put that 18% GST वाली चीज which you cannot claim until unless you have a GST with your own name. So अगर आपको खुद के नाम का GST नहीं है, आप उसको claim नहीं कर सकते. Like if I am giving CFA and I have the GST of FinLadder,
मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज द जीएसटी हैज टू बी इन ईशान अरोड़ाज नेम, नॉट फिल नाडर्स नेम. तो until unless you do not have a GST with your name, आप उसको ITC क्लेम नहीं कर सकते. तो फॉर द फर्स्ट लेवल यू हैव टू पे नाउ 1 लाख रुपीज. सेकंड लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे भी हट जाता है, बट स्टिल इट्स अराउंड 70-75,000. थर्ड लेवल अगेन 70-75,000, सेम चीज. देन बुक्स, कैलकुलेटर एंड कोचिंग, लेट्स से 60,000 यहाँ पे, 4,000 यहाँ पे और 6,000 यहाँ पे. 70,000 कम्स फॉर दीज थ्री. इनको अगर आप ऐड करोगे इट कम्स अराउंड 3 lakhs. So 3 to 3.2, within 3.2 you will be able to, हाँ, it has been increased. 1 lakh is the total amount. So ये आपका टोटल 3 to 3.5 lakhs का इन्वेस्टमेंट है. नाउ वन वेरी कॉमन थिंग आई हैव सीन इज, यूजुअली लोग बोलते हैं कि अच्छा आई ट्राई टू मेक इट. यूजुअली लोग बोलते हैं कि दीज आर एक्सपेंसिव कोर्सेज एंड नो डाउट दीज आर, मतलब हमको आदत नहीं होती यार, किसी को भी आदत नहीं होती कि एकदम से वो 2-2 लाख का पेपर देना शुरू कर दे. जैसे CPA, ACC, ऑल दीज इंटरनेशनल एग्जाम्स, दीज आर एक्सपेंसिव एग्जाम्स. सो द पॉइंट इज कि या दे आर एक्सपेंसिव बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दे आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर आप MBA करने जाते हो ना, यू नो हाउ मच यू हैव टू पे. वैसे तो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, बट 1.7 lakhs और 3 lakhs इससे तो ज्यादा ही होता है, 100% से ज्यादा होता है. एंड वो उतना सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे जितना FRM और CFA कवर करेंगे फॉर श्योर. जैसे मैंने आपको अभी एक MBA का एग्जाम्पल दे दिया. सो उस वाइज इट्स नॉट एक्सपेंसिव. उस वाइज, okay George, I'll do it again. Us wise it's not expensive, otherwise yeah these are expensive, but if you see the knowledge wise ROI, that is good. So ek ye cheez I wanted to clear out. I'll quickly repeat the part for the CFA fees. See, if you have to give CFA for the first time, CFA level 1, you have to pay the registration fee, the exam fee plus GST on that, 18% GST. So that is going to be 1 lakh rupees रफली. थोड़ा डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बट 1 लाख लगा के चलो. फॉर द सेकंड एंड द थर्ड लेवल यू डू नॉट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी अगेन, दैट इज $450, वो कट जाएगा 1 लाख से. सो दैट इज योर लेवल 2 एंड लेवल 3 का एग्जाम फी. देन आई एम अज्यूमिंग योर बुक्स विल कम अराउंड 2,000 फॉर ईच लेवल, तो 6,000 बुक्स का. 4 to 5,000 is your calculator का अमाउंट. BA2 plus professional का is 6,000, 4-5,000. BA2 plus का it's around 3,000. I recommend BA2 plus professional only. मैं खुद भी वो यूज करता हूँ, अभी पढ़ा नहीं है मेरे पास, आई वुड हैव शोन इट टू यू गाइस. तो उसमें 1-2 फंक्शंस है जो BA2 प्लस वाले में नहीं है और प्रोफेशनल वाले में है. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग वन टाइम तो 1-2,000 ज़्यादा देके वो ही ले लो आप, बिकॉज FRM लेवल 2 में उसमें कुछ फंक्शंस है जो दूसरे वाले में नहीं है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. देन कोचिंग आई एम अज्यूमिंग 20,000 फॉर ईच लेवल. तो 3.2 के अंदर अंदर इज द मैक्सिमम आई एम सेइंग. 3.2 के अंदर अंदर यू बिकम अ CFA.